So exercise task 4. Requirements आप लोगों ने पढ़ ली हैं, right? Amelia wants a web page that customers can use to make an inquiry about a booking. Web page must meet the following requirements. Check that the forename field is completed. Check that the surname field is completed. Check that the telephone number field is completed. Check that the value entered into the number and party field is between 1 and 10 inclusive. Suitable error messages must appear when the submit button is clicked if any of the above checks fail. And then you are to save, I think, using the file this, add a script, meet the requirements of Amelia web page. Programmer comments must be added to annotate each requirement. Then you need to save it. The very first step that I told you, whenever you open up your web authoring application, drag drop your HTML. Do not go through the code yet. Look at the design first. Always. Look at the elements, identify the elements, right? So we've got a couple of input boxes in this. Once you have gone through, or let's say have gone through the elements, open it up in your browser. Yeah, sometimes the examiner has already put the functions, or it is operating, or it's incorrect. So it's very important to look at the HTML file in your browser. Actually, so let me zoom in. Forename, let's add a forename. We need to add a surname, email address, telephone number. Then we need to have a date, let's say time of the booking, whatever it is, and number in party, let's say 200. Click on submit. Nothing happens, right? However, whatever I entered got deleted when I clicked on submit, right? So now you need to identify the elements and go through the code individually. You are to apply the checks on which fields? Phoneme, surname, telephone number. We are not, concerned about other fields. Only these three fields are to be checked. And the number in party needs to be 1 and 10, between 1 and 10. ठीक है? अब आप इस इनपुट बॉक्स को, फोरनेम के इनपुट बॉक्स को क्लिक करते हो and you need to look at the code. So in the design, I'm going to click on the input box, go on to my code gets highlighted. It says input type. Input, it's an input box. Type is text. It will accept alphabets, numbers, symbols. Name is what? Phoneme. Value by default is set to blank. And the size is 40 is probably the number of characters. Acha. Point is, if any element has to be referred to in your script, it needs to have an ID. कोई भी एलिमेंट अगर आपने अपनी स्क्रिप्ट में यूज करना है तो दैट एलिमेंट नीड्स टू हैव एन आईडी. ठीक है, आईडी इज द कीवर्ड. यहां पे उसने क्या डाला हुआ है? नेम डाला हुआ. नेम इज नॉट, इट डज नॉट मीन एनीथिंग. आपको इसको रीनेम करना था टू आईडी, so that you can refer to this element in your code as get element by id. ठीक है. अच्छा, इसी तरह ये देखो, ये सरनेम का है, दिस नीड्स टू बी एन आईडी. उसके बाद ईमेल है, दिस आल्सो नीड्स टू बी एन आईडी. ऑल्दो हमने इसको चेक नहीं करना, बट स्टिल दिस नीड्स टू बी आईडी. यहां पे डेट भी आपकी आईडी. इट इज द सेम कॉन्सेप्ट जो हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में किया. ठीक है, सिर्फ आपने कुछ चीजें हैं, वर्कफ्लो है जिसमें आपने जहां से आपने स्टार्ट लेना होता है. ये कर लिया. उसके बाद क्या है कि वी हैव अ बटन इन आवर डिजाइन व्हिच इज कॉल्ड सबमिट. सो इफ आई क्लिक ऑन दिस एलिमेंट, गो ऑन टू माय कोड, दिस गेट्स हाईलाइटेड. अब यहां पे क्या लिखा हुआ है? इनपुट. दैट्स नॉट द टैग फॉर द बटन. बटन का टैग तो बटन के नाम से होता है. ठीक है, so that needs to be there. Name is submit, type is submit, value is submit. We
don't agree to what they have written over here. Okay, so we are going to add the button, starting the tag with button and then ending the tag with button. अच्छा, अब इसके ऊपर टेक्स्ट कौन सा आ रहा था? Submit. So the text which has to appear on top of your button needs to be between the tag. You're going to type in submit. ठीक है? अच्छा, अब जाहिर बात है कि when we fill out our details तो हम बटन पे क्लिक करेंगे, और जब बटन पे क्लिक करेंगे तो वो चेक करेगा कि फोरनेम कंप्लीटेड है, नहीं है, सरनेम है कि नहीं है, या टेलीफोन नंबर है कि नहीं. ऐसे ही 3 चेक्स इसी तरह चलेंगे ना. सो बटन के ऊपर हमें कोई फंक्शन असाइन करना पड़ेगा सो दैट इट कैन रन, राइट. पहले हम सिर्फ एक नॉर्मल स्क्रिप्ट लिखते हैं सो दैट वी नो दैट आवर स्क्रिप्ट वर्क्स. ठीक है, सो वी स्टार्ट विद स्क्रिप्ट and we end with script. Script comes at the end after your HTML. अगर एग्जामिनर ने पहले से ऐड की हुई है तब तो ठीक है, कोई पोजीशन मसला नहीं है. अगर आपने खुद से लिखनी है तो इट नीड्स टू बी आफ्टर योर HTML. Wherever your HTML is ending, उसके बाद स्क्रिप्ट करो. However, स्क्रिप्ट कहीं भी आप डाल सकते हो, वो आपके HTML पे विजिबल नहीं होती. ठीक है, सो स्क्रिप्ट में HTML के यहां पे भी डाल सकता हूं, डज नॉट मैटर. पॉइंट इज कि ये रिकमेंडेड जगह है, आपके पास एरिया है, साफ चीजें नजर आएंगी. सो लेट्स ऐड सिंपल अलर्ट ऑन टू आवर स्क्रिप्ट, मेकिंग श्योर और लेट्स से वेरीफाइंग दैट दिस वर्क्स. सिर्फ अलर्ट डाला मैंने. नाउ टेक्निकली इफ आई रन दिस, ओपन दिस अप इन माई ब्राउजर, तो क्या होगा? पहले स्क्रिप्ट चलेगी. स्क्रिप्ट में क्या है? अलर्ट है. ठीक है, so we run this, we get the prompt or the pop-up, click on OK. Now the HTML comes. So script हमारी चल रही है. हमने क्या कहा था? अगर मैंने इसके ऊपर कंट्रोल लेके आना, ठीक है, if I want to connect this with a function, तो हम क्या करेंगे? इसी कमांड को फंक्शन में लिख देंगे. लेट्स से मैं लिख देता हूं फंक्शन, the name of the function is check, open the round bracket and close it, and then curly bracket to start my function actions and curly bracket to end it. ठीक हो गया? सही है. अब अगर मैं इसको चलाता हूं तो मेरा पॉपअप नहीं आता. क्यों नहीं आ रहा? बिकॉज मैंने अपनी अलर्ट को एक फंक्शन में डाल दिया, और फंक्शन का मसला क्या है कि फंक्शन को चलाने के लिए उसको कॉल करना पड़ता है. ठीक है, which is why we call this calling the function. Okay, within my script, if I type in check like this is basically going to call my function. So again, if I run this, तो मेरा prompt आ जाएगा because the function is being called. वहां समझ आ रही? ठीक है. अच्छा, मैं कहता हूं इसको मेरे सबमिट बटन के साथ क्लिक कर दो, लिंक कर दो. तो मैं क्या करूंगा? स्क्रिप्ट में जो कॉलिंग है उसको खत्म कर दूंगा. ठीक है, और मैं अपने बटन के साथ इसको लिंक करूंगा. बटन के साथ लिंक करने के लिए इन द टैग ऑफ बटन आई विल टाइप इन ऑन क्लिक equals to, in the speech marks I'm going to name my function. अब क्या होगा? जब मैं बटन पे क्लिक करूंगा, ऑन द क्लिक इट विल कॉल दिस फंक्शन. फिर मेरा कोड स्क्रिप्ट में जाएगा और वो इसको रन कर देगा. सो एडिंग मोर कंट्रोल, राइट. सो सेविंग इट, नो प्रॉम्प्ट. इफ आई क्लिक ऑन सबमिट, पॉपअप कम्स. ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट being repeated over and over again. याद रखें, any element from the HTML if has to be referred to, उसका ID होना चाहिए. स्क्रिप्ट में उसको अगर आप यूज करोगे तो उसका ID होना चाहिए. इसी तरह अगर कोई स्क्रिप्ट की चीज आपने HTML के साथ लिंक करनी है, मोस्ट प्रोबेबली विद अ बटन, तो उस बटन के साथ ऑन क्लिक का फंक्शन यूज हो जाएगा. ठीक है, सो दैट फंक्शन इज कॉल्ड. अच्छा, अब आ जाओ एक्चुअल चीज हमने क्या चेक करनी. हमने चीज चेक करनी है फोरनेम, सरनेम और टेलीफोन नंबर. सो इट इज फोरनेम, सरनेम एंड टेल नो. ठीक है, ये आईडीज हैं उनके. आई कैन रिफर टू द सेम आईडीज
आई कैन इवन चेंज दी आईडीज, ठीक है, मतलब मैं इसको एक डिफरेंट वेरिएबल के साथ असाइन कर सकता हूं सो दैट आई डोंट हैव टू टाइप दैट मच। और जब ज्यादा टाइप करते हो ना तो उसमें प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है गलत टाइप करने की, ठीक है। अब फॉर इंस्टेंस हम शॉर्टकट नहीं लेते और हम कहते हैं कि हम आईडी को एज इट इज यूज करेंगे, ठीक है। सो व्हाट आर वी सपोज टू चेक? वी आर सपोज टू चेक इफ राउंड ब्रैकेट ओपन क्लोज, इफ फोर नेम को चेक करना है ना, तो फोर नेम क्या है? एक आईडी है, उसकी जो सबसे लंबी कमांड है दैट इज डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी within the brackets the id name which is for name, ठीक है, डॉट वैल्यू। अब ये सारा टाइप करते करते ना देयर इज अ चांस दैट यू कैन मेक अ मिस्टेक, ठीक है, बिकॉज मोस्ट ऑफ यू आर लुकिंग एट योर कीबोर्ड और जब आप उसको सीधा रन करते हो तो वो रन नहीं हो रहा होता, पता चलता है कि एलिमेंट में एक ई गायब है, ठीक है, या ये ई जो है ये आपने स्मॉल लेटर टाइप कर दिया। इट कैन बी एनीथिंग बट दिस इज द most difficult or probably the longest way to do it. If this value, अब मैं अगर इसको कंपेयर करता हूं, if this value is equals to empty, ठीक है, ये मेरा टेस्ट है। आई एम टेस्टिंग व्हाट? फोर नेम वैल्यू। फोर नेम क्या है? एक आईडी है एक इनपुट बॉक्स का जहां पे यूजर फोर नेम ऐड करेगा। इफ दैट वैल्यू इज टर्निंग आउट टू बी एम्प्टी, ठीक है, देन हम इसको अलर्ट कर देते हैं, लेट्स से हेलो सर, दिस नीड्स टू बी enclosed in speech marks, ठीक है, जस्ट टू चेक वेदर दिस वर्क्स और नॉट। हम इसको रन करें। नाउ इन ऑर्डर टू टेस्ट इट, इफ वी टाइप समथिंग इन, ठीक है, सो इट्स नॉट एम्प्टी। नाउ इफ आई क्लिक ऑन सबमिट, मेरा फंक्शन कॉल होगा, मेरा फंक्शन फोर नेम की वैल्यू को चेक करेगा वो एम्प्टी है कि नहीं है कि नहीं है? नहीं है, राइट है। सो मेरा मैसेज आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। सो इफ आई क्लिक ऑन सबमिट, नो इक्वल्स टू एम्प्टी किया हुआ है, ठीक है। इफ आई क्लिक इट वंस, लुक एट, वी डोंट गेट अ प्रॉम्प्ट, लेकिन मैं जब दोबारा क्लिक कर रहा हूं तो वो एक्चुअली फॉर्म क्या हो रहा है? एम्प्टी हो रहा है, ठीक है। सो एम्प्टी के ऊपर अगर मैं सबमिट कर रहा हूं तो प्रॉम्प्ट कर रहा है, ठीक है। सो आई क्लिक ट्वाइस अर्लियर। अब इसका शॉर्टर वे क्या है? I do not have to write this whole command and I can simply write forename dot value. This can be done only if that element has an ID. It means the same. Run it. Forename left empty. If I click on submit, I should get the message. Got it? अच्छा, इससे भी simpler कर लो. Within the function, I'm going to add variable f which is equals to forename dot value. ठीक है, तो अब मैं टेस्ट किसको करूंगा? If f is equals to empty. ये समझ आए? This is the third method doing the same thing. मैंने क्या किया? एक वेरिएबल बना दिया और उसके अंदर असाइन कर दी क्या? फोरनेम की वैल्यू। जब फोरनेम की वैल्यू f पे असाइन होगी तो मैंने टेस्ट f को करना है ना, ठीक है। सो दिस इज द थर्ड मेथड। अब जौन सा मेथड आपको कन्वीनियंट लगता है, आसान लगता है, या आप उसमें आपको लगता है कि इसमें आपकी गलती नहीं होगी तो डू इट। अब अलर्ट हम सही कर देते हैं, प्लीज एंटर फोरनेम। ये मेरा मैसेज आ गया, ठीक है। इसको रन कर, सबमिट, प्लीज एंटर फोरनेम आ गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद we are to do the same thing for what? Surname and telephone number. Look, एक वेरिएबल बनाया s equals to surname
डॉट वैल्यू, उसके बाद एक वेरिएबल बनाया t इक्वल्स टू टेल नो डॉट वैल्यू, ये बना दिया। उसके बाद आई एम गोना टेक द सेम if, right, because this is correct, it's working fine, so I will take the same if and change the symbols. This is s and this is t. This needs to be surname and this needs to be telephone. हो गया, रन करो। लीविंग द फोरनेम ब्लैंक, एडिंग अ सरनेम, टेलीफोन नंबर भी हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। दो एडेड है, फोरनेम नहीं है। सो इफ आई क्लिक ऑन सबमिट, एरर कौन सा आना चाहिए? फोरनेम। फोरनेम का आ गया, ओके। हम फोरनेम को ऐड कर देते हैं, सरनेम बैंक छोड़ते हैं, टेलीफोन भी ऐड कर देते हैं। अब एरर कौन सा आना चाहिए? सरनेम का। सबमिट, प्लीज एंटर सरनेम। अब हम फोरनेम भी ऐड कर देते हैं, सरनेम भी ऐड कर देते हैं, टेलीफोन नंबर ब्लैंक छोड़ देते हैं। सो सबमिट, एंटर टेलीफोन। सिंपल। आगे चेक करो। हाँ, दैट कैन बी डन। ये सेपरेटली तो डील कर रहा है उसके साथ, तीनों ब्लैंक हों भी, ठीक है। अगर तीनों ब्लैंक होंगे तो तीनों के मैसेज आएंगे। लुक, अरीबा ने पूछा कि अगर तीनों ब्लैंक छोड़ देंगे तो क्या होगा? तीनों ब्लैंक छोड़ दोगे तो पहले फोरनेम, फिर सरनेम, फिर टेलीफोन नंबर, तीनों के प्रॉम्प्ट आएंगे। सो वी क्लिक ऑन सबमिट, फोरनेम ओके, सरनेम, टेलीफोन नंबर। किसके? इफ यू वांट तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। नो, यू आर टेस्टिंग ऑल द थ्री ना। आप एंड को ऑपरेटर इस्तेमाल कर लो, एक और इफ लगा दो अगर आपने बहुत ज्यादा इसको रेक्टिफाई करना है, बहुत प्रिसाइज करना है। बट दिस इज गुड, दिस इज ऑल व्हाट द एग्जामिनर रिक्वायर्स। अब एक चीज उसने कही भी है, नंबर इन पार्टी। नंबर इन पार्टी का देखो आईडी क्या है, नंबर इन पार्टी इज दिस, आईडी इज व्हाट, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूं, आई विल एड अ वेरिएबल n which is assigned with num dot value, ठीक है। अच्छा, दिस नीड्स टू बी अ नंबर। नंबर बनाने के लिए आप दो काम कर सकते हो, या तो मल्टीप्लाई बाय 1 कर सकते हो, या फिर आप इसके ऊपर नंबर का फंक्शन लगा दो, स्टार्ट्स विद अ कैपिटल N। So the value is going to be converted into a number. However, why do I feel the need to do it? Because in that input, the type is what? Set to text. So if you type an alphabet, it should not calculate, it should not check, ठीक है। मैंने बहरहाल उसको नंबर में कन्वर्ट कर दिया। नाउ उधर ही HTML में उसमें भी कर सकते हैं, उसमें ही कर सकते हैं। अच्छा, अब ये देखो, अब मैंने टेस्ट क्या करना है, दिस वैल्यू नीड्स टू बी व्हाट, बिटवीन 1 and 10, ऐसा ही है। मैं लिखूंगा इफ नंबर क्या है, नंबर इन पार्टी जो है हमने किससे असाइन कर दिया? n से। सो इफ द n इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 एंड n इज लेस देन और इक्वल्स टू 10, ठीक है, तब तो वैल्यू ट्रू क्या होगी? एम्प्टी, ऐसा ही है ना, ब्लैंक होनी चाहिए, एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर नहीं है तो वी टाइप इन आवर एल्स वैल्यू फॉल्स, दैट ओके अलर्ट yeah, enter the number between 1 and 10, और इसको हमने कर दिया इंक्लूसिव। हाँ, नहीं कुछ भी नहीं, आई लीव द syntax as it is, you don't have to type anything. Why would you want to alert blank? हमने सिर्फ रिक्वायरमेंट पूरी की है फंक्शन की, ट्रू की कंडीशन के लिए सिंटैक्स पूरा किया, दैट्स इट, बट वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग।
अब ये आएगा enter the number between 1 and 10 inclusive. Let's try this out. Phone name, sorry, गलत है. अच्छा, so टेलीफोन नंबर भी ऐड हो गया, ये एरर तो नहीं आएंगे. ठीक है, so let's say अगर हम यहाँ पे 200 डाल देते हैं, which is basically going beyond the range, click on submit, we get the error, enter the number between 1 and 10 inclusive. Click on OK. फिर से ऐड करो surname, telephone number, let's say it is 8. Error आना चाहिए? नहीं. Click on submit, nothing happens. This was the solution to your exercise 4. मुझे कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि क्या क्या होने, लेकिन मुझे ये नहीं पता था करना क्या, कहाँ पे करना. अच्छा, एक और चीज देखो. What if, now listen, अब ये एक और चीज देखो. मैं कहता हूँ अलर्ट्स ना डालो. ये जो मैसेजेस हैं ये सबमिट बटन के नीचे आने चाहिए. ठीक है, सो हम क्या करेंगे, मैंने आपको क्या तरीका बताया. इफ यू हैव गॉन थ्रू द लेसन, ठीक है, ये सबमिट है, इसके नीचे आई एम गोना प्रेस एंटर, लाइन ऐड होगी. ओके, आई विल गो टू माय कोड, आई विल गेट टू सी वेयर दिस इज एडेड, आई विल रिमूव दिस इज नॉट नीडेड, दिस इज फॉर ब्लैंक स्पेस. अच्छा, मैं इसका टैग चेंज कर देता हूं, नॉट टू पैराग्राफ, लेट्स से H1 हेडिंग 1. यस, ठीक है, ये हो गया. अब मुझे क्या करना है, इस जगह पे अगर मुझे आंसर चाहिए तो मैं यहां पे एक आईडी डिफाइन कर दूंगा. अगेन, if I want to make use of certain element or space within the HTML, it needs to have an ID. अब ID मैंने दे दिया इसको, let's say result. ठीक हो गया. अब बजाय इसके कि मैं यहां पे अलर्ट करूं, मैंने यहां पे डाल देना क्या, document dot get element by ID, and the ID is result, right? Dot inner HTML, because you are to insert the text, equals to this, equals to what? होगा. Okay, so this is done. अब इसको मैं कॉपी कर लेता हूं. Copy this. The only thing is build your concept. ठीक है, उसी को, हाँ, एग्जीक्यूशन भी इसी तरह होगी. प्रैक्टिस करोगे तो एग्जीक्यूशन भी हो जाएगी. Inner HTML, if you want to insert a text into your HTML at a certain point, that point is basically defined by an ID. That ID, we created that ID. ठीक है, एंटर किया, पैराग्राफ में लाइन आई, उसको हमने टैग H1 कर दिया. Now let's run this, see if it works. Submit. ठीक है, अब यहां पे let's say, ठीक है, it is actually executing, but I just did this within the form, I think. So yeah, इसको हम फॉर्म के बाद डालते हैं. ठीक है, run it. इसमें अब कोड चेंज करना पड़ेगा, but you'll practice this in the next exercise. You have to type in the message after your button. This might be somewhere which is basically going to refresh this. ठीक है, you get the concept. Inner HTML भी हो सकता है, alert भी हो सकता है. prompt कब होगा, जब यूजर से वैल्यू लेनी है. ठीक है, और कंफर्म में क्या होगा, ओके और कैंसिल की ऑप्शन आएगी. अलर्ट में सिर्फ ओके की ऑप्शन आती है, इट्स जस्ट अ प्रॉम्प्ट. ठीक है, और पॉपअप. सो सॉल्यूशन टू एक्सरसाइज 4.